Respected Principal Sir, learned teachers, guests, parents, and my dear fellow students, a very good morning to all present here and those who are virtually watching the program. I, on behalf of Kendriya Vidyalaya Ambikapur, cordially welcome you for the celebration of this auspicious day of Republic Day. As we all know, today all of us are here to celebrate the 73rd Republic Day of our country. Every year, we celebrate Republic Day on 26th of January because on this day, Constitution of India came into the force in 1950. This day reminds us of our freedom struggle and how the great freedom fighters of our country sacrificed their lives to get us the Purna Swaraj. On this auspicious day, let us not forget their struggle and sacrifice, due to which we are living in a democratic country, where each and every citizen has right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. Today is the day to reaffirm our commitment to unity in diversity, fraternity, and equality among all our citizens. With these words, now I invite our principal sir for flag hoisting. Principal sir.
Yes, Ram. Yes. After registration, there will be 10 teachers will get opportunity to start staffing and this will be assisting. Same to you. कहाँ बैठाएंगे स्टूडेंट्स को कहीं पे बैठा के कंप्यूटर रूम में आके बैठा दीजिए आकांक्षा समृद्धि तुम लोग कंप्यूटर रूम में आके बैठ जाओ तुम लोग कंप्यूटर रूम में बैठ जाओ तुम सर वहाँ पे कहाँ देखोगे वॉइस म्यूट कर दिया करो ना अदर टॉकिंग होती है ना Anand sir, Yes, sir. बाकी टीचर्स तो कोई जुड़े नहीं है तो फिर मैं एक बार ऐसे ही प्रोग्राम शेड्यूल बता देता हूँ, ठीक है? बाकी लोग को जुड़ने के लिए बोले हैं कि नहीं, क्योंकि बाकी लोग कोई नहीं जुड़ा है। जी मैंने मैसेज किया था, अभी फिर से एक बार कर देता हूँ। सबको बोलिए समय से जुड़े, देन कार्यक्रम शुरू हो जाए सर। सभी जुड़ेंगे तभी वो हो पाएगा, नहीं तो So, before going ahead and proceeding towards our program, I would like to just let you know about the program schedule, the sequence of the program. After the flag hoisting, there will be videos on National War Memorial, which will be presented by Pankaj Tiwari sir, followed by fancy dress by class first A and B. After that, slogan will be said from class 2AB. Then third program will be patriotic poem, which will be recited by the students of class 3rd A and B. After that, drawing and painting display by class 4th A and B. Then after that, patriotic song by class 5th A and B, followed by patriotic poem, class 6th A and B.
After that, classical dance, which is going to be presented by class 7th A and B, followed by the patriotic song by class 8th A and B. Then after that, there will be a speech by a student in Hindi by Astha Sinha, class 11th B. After that, speech by teacher Sri Janki Sharan. Then after that, display of Surya Namaskar, which will be presented by K. Kujur. After that, art and craft display by Sri Avdesh Kumar. After that, the blessings of the principal sir. Then we'll conclude our programs. So now I request Sri Pankaj Tiwari sir to present the videos of National War Memorial. Pankaj sir. Thank you, sir, for giving me this opportunity. आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारे देश में इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं और इसी तारतम्य में हमारे विद्यालय में भी कार्यक्रम चल रहा है। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे देश के वीर जवानों के। हेलो पंकज सर, टर्न ऑन योर कैमरा। नेशनल वॉर मेमोरियल पर केंद्रित एक वीडियो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। और इसमें आप देख पाएंगे हमारे देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सुरक्षा कर्मियों को समर्पित इस नेशनल वॉर मेमोरियल पर केंद्रित यह वीडियो। भारतीय सेना यानी राष्ट्र के प्रति निष्ठा, गौरव और अदम्य साहस की एक ऐसी मिसाल जो युद्ध और शांति में अपना फर्ज निभाती है। और उस सेना की ताकत है एक जवान जो छल, थल और नभ में अपनी वीरता के जौहर दिखाता है, जिसकी एक अंगड़ाई से देश का हर दुश्मन थर्राता है। पर जीत की नींव तो अमर असंख्य बलिदानों पर रखी जाती है। और अब समय है 1947 के बाद शहीद हुए उन हजारों वीरों के बलिदान के सम्मान का, जिन्होंने आजाद भारत की रक्षा के लिए अपने प्राण मातृभूमि को समर्पित कर दिए। सरकार में आने के बाद हमने वो फैसला लिया, अब वो पूर्णता पर है और फरवरी महीने में देश के वीर बलिदानियों जिन्होंने उच्च बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया, ऐसे वीरों की स्मृति में भारत का एक राष्ट्रीय स्तर का वॉर मेमोरियल तैयार हो चुका। इसके लिए दिल्ली के बीचों बीच इंडिया गेट के सामने एक भव्य राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया है। 40 एकड़ में फैले गोलाकार युद्ध स्मारक के 4 चक्र हैं। पेड़ों से बना रक्षा चक्र दिखाता है कि एक वृक्ष की भांति कैसे हमारे जवान भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इसके बाद आता है त्याग चक्र, जो पत्थरों से तराशी गई 2 पंक्तियों का है और हर एक पत्थर अलग अलग युद्धों और सैन्य अभियानों में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले 26,000 महान बलिदानियों के नाम से रोशन हो रहा है।
तीसरे चक्र यानी वीरता चक्र में दीवारों पर बनी कांसे की कलाकृतियों में भारतीय सेना के तीनों प्रभागों की वीरता की कहानी अंकित है। और इस स्मारक के बीचों बीच स्थित अमर चक्र में है अमर ज्योति, जो हर भारतीय शहीद जवान के शाश्वत शौर्य की गाथा कहती है। और यह 15 मीटर ऊंचा स्तंभ जो दिखाता है कि हमारे सशस्त्र सैन्य बलों का हौसला अधिक अटल है। और इस स्मारक के साथ एक पार्क है जो 21 परमवीर चक्र सैनिकों के साहस की कहानी कह रहा है। जिन्होंने तिरंगे की शान रखने को सर्वोच्च बलिदान दिया है, हमारे सुनहरे कल की खातिर अपना आज कुर्बान किया है। दिन हो या रात, माँ भारती पर न्यौछावर हुए उसके बेटों का ये स्मारक हर पल भव्यता से सराबोर है। आज देश की प्रगति में उनकी वीर गति भी चमक रही है, जिन्होंने हंसकर अपने प्राण गंवाए, जो लौट के घर न आए। जब डूब रही थी धर्म की कश्ती, जब डूब रही थी धर्म की कश्ती, लगता दूर किनारा था, तब लेकर हाथ में धर्म ध्वजा मेवाड़ी शेर दहाड़ा था, मेवाड़ी शेर दहाड़ा था। बहुत अच्छे तिवारी जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे के कार्यक्रम के लिए परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज 73वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं रत्ना श्रीवास्तव, प्राथमिक शिक्षिका, केंद्रीय विद्यालय अंबिकापुर परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। इस गणतंत्र दिवस को यादगार बनाने के लिए हम चलते हैं विद्यालय के रंगारंग कार्यक्रम की ओर। भारत का वीर जवान हूं मैं, भारत का वीर जवान हूं मैं, ना हिंदू ना मुसलमान हूं मैं, दुश्मन के लिए चट्टान हूं मैं, भारत का वीर जवान हूं मैं, भारत का वीर जवान हूं मैं। इन्हीं पंक्तियों के द्वारा मैं विद्यालय के कक्षा प्रथम के बच्चे, हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के द्वारा एक कार्यक्रम है जिसको फैंसी ड्रेस कहेंगे। विभिन्न रंग बिरंगे पोशाकों में वे अपना प्रदर्शन देने जा रहे हैं, कक्षा प्रथम के बच्चे। तो देखिए बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। मेरा नाम है उपाध्याय, मैं कक्षा 1A की छात्रा हूँ। मैं आज झांसी की रानी बनी हूँ। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी गानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद। मेरा नाम यशस्वी साहू है, मैं कक्षा पहली में पढ़ता हूँ। मैं चाचा नेहरू बना हूँ। चाचा नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। जय हिंद। धन्यवाद। मेरा नाम सृष्टि है, मैं 1B क्लास में पढ़ती हूँ। अवध की बेगम हजरत महल अकेले अपने दम पर अंग्रेजों को धूल चटा दी। अब सब कुछ बलिदान
इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जो कितना बाजुए का तिनका। थैंक यू। मैं अंकिता सिंह, आज मैं अपनी धरती माँ की सैनिक बनी और बड़ी होकर वीर सैनिक बनूंगी और अपनी धरती माँ की रक्षा करूंगी। जय हिंद, जय भारत। My name is Arman Singh. Today I have invited कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी भारत की चुनाव लड़ने वाली पहली महिला थी। कमला देवी का जन्म कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ था। कमला देवी गांधी जी के विचार से जुड़ गई। उन्होंने भारत की आजादी के लिए विश्व का दौरा किया। कमला देवी भारत की आजादी के बाद भी एक से एक काम की। उन्होंने हस्तशिल्प बोर्ड का स्थापना किया। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है। भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। भाग फिरंगी भाग भाग रे भाग। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट, ये मनु है लक्ष्मी बाई है। शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। नयन की धार तो देखो, बज कर भारी भार तो देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई। चमक उठी संसद में, वो तलवार पुरानी थी। तुम देख के बोलोगे, हमने सुनी कहानी थी। खूब बड़ी मधानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। भाग फिरंगी भाग, भाग फिरंगी भाग। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे शिक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं भगत सिंह बनी। भगत सिंह का नारा था इनकलाब जिंदाबाद। नर्तकी के दिल से वतन की उल्फत नहीं जाएगी। मेरे मिट्टी से भी वतन की खुशबू आएगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम। क्लास 2A। भारत मेरा प्यारा देश है। हाय, आई एम आरोही जायसवाल। आज का मेरा स्लोगन है, अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। थैंक यू। मैं शुभांगी दुबे, कक्षा दूसरी A। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे भूल दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। मेरा नाम सुजा सिन्हा, क्लास 2A। स्वराज मेरा जन्म
निश्चित अधिकार है। मेरा नाम आशी अक्का है, मैं क्लास 2A में पढ़ती हूँ। मेरा स्लोगन है भारत मेरा प्यारा देश, सब देशों से मेरा देश। ना आन का ना बान का, न सामान भूमि किसान का, लहराएंगे हर जगह तिरंगा हिंदुस्तान का। हैप्पी रिपब्लिक डे, भारत माता की जय, हिंदुस्तान अमर रहे। गली गली जाएंगे, वीरों की गाथा गाएंगे। आप सभी को अपने द्वारा सुनाया। बच्चों बहुत अच्छा लगा बेटा। वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, आ सके देश के काम नहीं। बच्चों बहुत अच्छा रहा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने बच्चों को धन्यवाद देना चाहूंगी और पुनः आमंत्रित करना चाहूंगी कक्षा 3 की विद्यार्थी जो अपनी मधुर वाणी के साथ आपको अच्छी अच्छी कविताएं लेकर आ रहे हैं। बच्चों का नाम है अन्वी तिवारी, कक्षा 3A। मेरा नाम अन्वी तिवारी है, मैं कक्षा 3A में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे वतन में रहने वाले जन जन का सम्मान है, हम भारतवासी ये चाहे मेरा देश महान हो। सुनना चाहो तो सुनो ध्यान से, एक संदेश हमारा है, अच्छा बुरा जैसा भी भारत देश हमारा है। थैंक यू, जय हिंद। Thank you, Anvi Tiwari, for this beautiful presentation of the poem recitation. Freedom in mind, strength in the words, pride in our souls, zeal in our hearts. Let's salute our great country on Republic Day. Along with these words, now I request drawing and painting display from class 4th A and B. जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। गणतंत्र दिवस पर की अवसर पर मेरे ओर से और विद्यालय परिवार से सभी बच्चों को, अभिभावकों को बहुत बहुत बधाइयां। कार्यक्रम की अगली कड़ी में कक्षा 4A और B सेक्शन के द्वारा कुछ ड्राइंग बनाया गया है, तो लीजिए प्रस्तुत है।
धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आपके द्वारा अति सुंदर सराहनीय ड्राइंग पेंटिंग हम सभी को देखने मिली। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी लहरे सर को, विलियम सर को। आपके सौजन्य से बच्चों ने इतना अच्छा कार्य किया। बच्चे धन्यवाद के पात्र हैं और उन्हें हम सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों चलिए इस कार्यक्रम की अगली कड़ी को हम पुनः आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों के द्वारा देशभक्ति गीत सुनो रे सुनो देश के हिंदू मुसलमान, सुनो बहन भाई, सुनो सुनो नौजवान। तो कक्षा 5वीं के बच्चे अपने मधुर वाणी से आपको देशभक्ति गीत सुनाने जा रहे हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है। सुप्रभात, मेरा नाम आराध्या साहू, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं गाना प्रस्तुत करने वाली हूँ। लीजिए, प्रस्तुत है। मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, भूल न जाओ इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में बड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े हो, जब तक थी सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे ढल कर पाता, हो गए अमर बलिदान। है भारत देश के वीरों, तुम्हें कुछ कर दिखाना है। है भारत देश के वीरों, तुम्हें कुछ कर दिखाना है। पहले भगत सिंह आया, फांसी से न घबराया, झांसी की रानी आई परवाना बन के। पहले भगत सिंह आया, फांसी से न घबराया, झांसी की रानी आई परवाना बन के। ऐ भारत देश के
कुछ कर दिखाना है। ऐ भारत देश के वीरों, तुम्हें कुछ कर दिखाना है। चाचा नेहरू आए शांति के दूत बनके, दुनिया के लोगों सुन लो ये देश है हमारा। चाचा नेहरू आए शांति के दूत बनके, दुनिया के लोगों सुन लो ये देश है हमारा। ये भारत देश के वीरों, तुम्हें कुछ कर दिखाना है। ऐ भारत देश के वीरों, तुम्हें कुछ कर दिखाना है। गांधी ने वृक्ष लगाया, दिया आजादी की छाया, कुर्बान हो गए वो भारत के लिए। गांधी ने वृक्ष लगाया, दिया आजादी की छाया, कुर्बान हो गए वो भारत के लिए। ऐ भारत देश के वीरों, तुम्हें कुछ कर दिखाना है। ऐ भारत देश के वीरों, तुम्हें कुछ कर दिखाना है। ये धरती है हमारी, है जान से भी प्यारी, इसकी रक्षा करेंगे हम जान देकर। ये धरती है हमारी, है जान से भी प्यारी, इसकी रक्षा करेंगे हम जान देकर। ऐ भारत देश के वीरों, तुम्हें कुछ कर दिखाना है। ऐ भारत देश के वीरों, तुम्हें कुछ कर दिखाना है। तुम्हें कुछ कर दिखाना है। तुम्हें कुछ कर दिखाना है। Very good performance by Aradhya Sahu and Divyansh Ambast. With their songs, they have really encouraged us to be an awakened citizen of our country, and let us do something for our country. As we have got our independence due to the freedom fighters and their sacrifices and struggles. Similar way, with these two songs, they have simply encouraged us and made aware us to be responsible citizen of our country. Thank you, Divyansh Ambast and Aradhya Sahu, for your wonderful performance. Now I request a patriotic poem which is going to be presented by class 6A and B. सम्मानीय प्राचार्य महोदय, माननीय गुरुवृंद और मेरे सहपाठी भाइयों और बहनों, आज मैं गणतंत्र दिवस के पुनीत पावन अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और हमारे अमर बलिदानियों को सशक्त नमन करते हुए अपनी कविता हमारा गणतंत्र सादर समर्पित करती हूँ। हमारा गणतंत्र। मैं भारत का गणतंत्र हूँ, मुझ में स्वरूप तुम्हारा है। जन गण को समर्पित मैं, हिंदुस्तान समाया है। मैं भारत का गणतंत्र हूँ, मैं स्वाधीनता का अमर स्वरूप, मुझ में भक्त सुभाष है। गांधी वल्लभ नेहरू आजाद का मुझ में ही वास है। मैं भारत का गणतंत्र हूँ, जनता की आवाज बन मैं रोटी रोजगार हूँ। शोषित पीड़ित जन के खातिर लड़ने को तैयार हूँ। मैं भारत का गणतंत्र हूँ, मैं शहीदों का दिव्य स्वप्न लहू से सींचा हिंदुस्तान हूँ। आजादी के दीवानों का उज्जवल एक पहचान हूँ। मैं भारत का गणतंत्र हूँ, मैं स्वाभिमान स्वतंत्रता का प्रज्वलित परिचायक हूँ।
मौलिक अधिकारों का वाहक, स्वराज का मैं नायक हूँ। मैं भारत का गणतंत्र हूँ, एकता का मूल मंत्र में हिंदुस्तानी आवाज हूँ। जनगण मन अधिनायक मैं ही जनता का उद्धारक हूँ। मैं भारत का गणतंत्र हूँ, मैं भारत का गणतंत्र हूँ, मैं भारत का गणतंत्र हूँ। जय हिंद, जय भारत। सम्मान्य प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षक गण एवं मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं साई शंकर साहू, कक्षा 6वीं बी का एक छात्र, आज मैं आपको गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक देशभक्ति गीत सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है जीवन पथ पर। जीवन पथ पर हमको है आगे बढ़ते जाना, हर मुश्किल से लड़ना है, जीत का बिगुल बजाना। जीवन पथ पर हमको है आगे बढ़ते जाना, हर मुश्किल से लड़ना है, जीत का बिगुल बजाना। जीवन पथ पर जीत हमारी निश्चित होगी जब मन में है ठाना, हर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, हर सपना है पाना। जीत हमारी निश्चित होगी जब मन में है ठाना, हर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, हर सपना है पाना। कठिनाई ना रोक सके ऐसा विश्वास जगाना, कठिनाई ना रोक सके ऐसा विश्वास जगाना। जीवन पथ पर हमको है आगे बढ़ते जाना, हर मुश्किल से लड़ना है, जीत का बिगुल बजाना। जीवन पथ पर पथ में कांटों को छूकर हमने है फूल बनाना, अपनी आस्था से ईश्वर की कृपा को हमने पाना। पथ में कांटों को छूकर हमने है फूल बनाना, अपनी आस्था से ईश्वर की कृपा को हमने पाना। कठिनाई ना रोक सके ऐसा विश्वास जगाना, कठिनाई ना रोक सके ऐसा विश्वास जगाना। जीवन पथ पर हमको है आगे बढ़ते जाना, हर मुश्किल से लड़ना है, जीत का बिगुल बजाना। जीवन पथ पर जीवन अपना अवगति में हो, किसी की बात का न मन में भय हो, कदम कदम हमें आगे बढ़ना, अपनी शान बढ़ाना। कठिनाई ना रोक सके ऐसा विश्वास जगाना, कठिनाई ना रोक सके ऐसा विश्वास जगाना। जीवन पथ पर हमको है आगे बढ़ते जाना, हर मुश्किल से लड़ना है, जीत का बिगुल बजाना। जीवन पथ पर धन्यवाद। बहुत अच्छे बेटा अनन्या तिवारी, साई शंकर साहू, वेरी गुड बेटा। आपका जो भी ये कविता थी बहुत ही शिक्षाप्रद और बहुत अच्छी भावनाओं से ओतप्रोत थी, बहुत अच्छा लगा। आप धन्यवाद के पात्र हैं। और मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक। इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारा अगला कार्यक्रम है। मैं आपको तो इस कड़ी के माध्यम से ये बताना चाहूंगी, अभी हम लोगों ने कविताएं, सॉन्ग सुना। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी नृत्य की दुनिया में, डांस की दुनिया में हम आपको ले चलते हैं। क्लासिकल डांस कक्षा 8-7 की बच्चियां हैं, समृद्धि गिरी, इनके द्वारा क्लासिकल डांस प्रस्तुत करने जा रही हैं। समृद्धि गिरी कक्षा 7, तो लीजिए प्रस्तुत है।
डांस तुम मेरे यार हो, बचपन वाला मेरा प्यार हो। डांस तुम मेरे यार हो, बचपन वाला मेरा प्यार हो। दर्द देती हैं एड़ियां, लेकिन दिल कहता है हर बार हो, लेकिन दिल कहता है हर बार हो। अनन्या तिवारी एंड नहीं समृद्धि गिरी एंड स्वेधा के द्वारा प्रस्तुत किया गया ये नृत्य काफी ही सराहनीय है। ये बच्चों के अंदर की जो कलाओं को हमारे सामने में इन्होंने प्रेषित किया। वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय समृद्धि गिरी एंड स्वेधा। Now we'll move towards the next program, and the next program is going to be presented by class 8 A and B, and that will be the patriotic song. आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, पश्चिम में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट पर देखो गंगा का यह घाट है, घाट घाट पे बात बात पे यहाँ निराला घाट है। देखो ये तस्वीर अपनी गौरव की अभिमान की, देखो ये तस्वीर अपनी गौरव की अभिमान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों पे, जिसने सारा जीवन काटा बजरी तीर कटारों पे। ये है अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों पे, जिसने सारा जीवन काटा बजरी तीर कटारों पे। बोल रही है कन कन से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। थैंक यू।
बहुत अच्छे बेटा जिया बघेल, बहुत ही अच्छा गीत आपने प्रस्तुत किया। इसी क्रम में अब मैं कक्षा 11th बी की आस्था सिन्हा को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अपने विचार लेके गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में वे अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हैं। आस्था सिन्हा, कक्षा 11 बा। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को, आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से भारत गणतंत्र हुआ, जिनकी शहादत से भारत गणतंत्र हुआ। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक गण और मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि इस वर्ष भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। यह देश महापुरुषों का है, यह देश गुणी विद्वानों का, यह देश साधकों संतों का, यह देश वीर बलवानों का, यह देश वीर बलवानों का। गुणीजनों और महापुरुषों की उपस्थिति में हमारे देश की स्वतंत्रता अधूरी रहती जब तक इसका संविधान न रचा जाता। अतः राष्ट्र निर्माताओं के नेतृत्व में 26 जनवरी 1950 को भारत का अद्वितीय संविधान लागू किया गया। संविधान तो लागू हो गया था, पर यह बात अभी भी जहन में शेष थी कि भारत की गौरव गाथा बार बार दोहरानी है, भारत की गौरव गाथा बार बार दोहरानी है। प्यारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। परंतु अभी भी भारत के सामने ऐसी विषम परिस्थितियां थी जो मानव के स्वप्नों को खंडित कर देती, और तब मन में बस यही भाव जागने लगता कि सोचा था अपने देश को खुशियों से सजाएंगे, सोचा था अपने देश को खुशियों से सजाएंगे, समता और सद्गुणों से भारत में बहारें लाएंगे। परंतु हाय, ये आजादी के बाद क्या हो गया? कलाम के सपनों का भारत न जाने कहाँ खो गया, कलाम के सपनों का भारत न जाने कहाँ खो गया। गणतंत्र की स्वतंत्रता के लिए यह अति आवश्यक है कि हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, मौलिक चिंतन और वैचारिक स्वतंत्रता को बनाए रखें। लेकिन आज ऐसा लगता है कि मिली राजनैतिक स्वतंत्रता पर विचार परतंत्र है, मिली राजनैतिक स्वतंत्रता पर विचार परतंत्र है। पाश्चात्य चिंतन चरित्र से कहाँ हुआ स्वतंत्र है? अभी स्वदेशी तंत्र उपेक्षित, मिला कहाँ सम्मान है? अभी स्वदेशी तंत्र उपेक्षित, मिला कहाँ सम्मान है? और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है, रो रहा संविधान है। इस रोते हुए संविधान को प्रबल, सशक्त, सफल और प्रभावशाली बनाने का अधिकार अगर किसी को है तो सिर्फ और सिर्फ हम देशवासियों को। और ऐसे में हमें यह प्रण लेना है कि प्राणों में ले संकल्प शक्ति, प्राणों में ले संकल्प शक्ति, मानवता के प्रति अचल भक्ति। तुम चढ़ो ध्येय के शिखरों पर, इंद्रिय सुखों से ले विरक्ति, इंद्रिय सुखों से ले विरक्ति। और जिस दिन हम ऐसा करने में सफल हो पाएंगे, उस दिन एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा जो निर्भय, निष्पक्ष और निष्कलुष होगा। और तब हम ये कहने में पूर्णतः सफल होंगे कि कभी तिरंगे की छाया को शत्रु नहीं छू पाएगा। धैर्य, एकता और साहस से हर प्रश्न सुलझता जाएगा, हर प्रश्न सुलझता जाएगा। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा मेहनत और संघर्ष की आहुति दी गई और भारत को पूर्ण स्वराज दिलाया गया। अब अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि इस देश की कीमत जब जब हमने पहचानी है, इस देश की कीमत जब जब हमने पहचानी है, हमारे देश का बच्चा बच्चा बना देश से नानी है। जात पात भाषा और द्वेष का बीज न पनपने देंगे, जात पात भाषा और द्वेष का बीज न पनपने देंगे, अब इन आधारों पर हिंदुस्तान को बंटने न देंगे। एकता और सतरंगों से सजाएंगे संसार को, एकता और सतरंगों से सजाएंगे संसार को। गणतंत्र उपासक बनकर सच्चे उपहार देंगे राष्ट्र को, सच्चे उपहार देंगे राष्ट्र को। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। My student from class 11th B, presented by Astha Sinha. What a heart-awakening speech. Really, it was energizing, encouraging to each and every individual's
or the citizens of our country, that politically we are free from the bondage of the other countries, but then with our own hearts or with our own minds, we are still following some of the thoughts, the actions by the other countries and other citizens. Really, it is a challenging for the country for which our great leaders had dreamed for. The thing which still after 75th years of independence, we are not able to achieve. The speech really was heart awakening. It is the very encouraging words for each and every citizen of our country. Thank you, Astha, for this wonderful speech. We'll try to follow and we'll really dedicate ourselves to serve this country. Thank you once again, Astha. Now, I request our dear sir, Janki Sharan sir, to say a few words on Republic Day. धन्यवाद सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण व प्यारे बच्चों एवं श्रोतागण, आज हम सभी यहाँ एक बेहद खास अवसर पर उपस्थित हुए हैं। हम 73वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित होकर भारत के गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान की बात है। यह दिवस हम भारतीयों के लिए एक अभिमान की बात है। अनगिनत लोगों ने, हमारे देश के अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, तब जाकर के भारत को कहीं 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। इसी क्रम में मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, ये किस्सा रह जाएगा आधा। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, यह किस्सा रह जाएगा आधा। किस किसके मैं नाम गिनाऊं, सांसें कम हैं लोग ज्यादा। लेकिन स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 को मिला, क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। यह 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान सबसे बड़ा संविधान है। यह भारतीय संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है और राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इन्होंने इस दिन शपथ ली थी। गणतंत्र का अर्थ है जनता के लिए जनता का शासन। आम जनता अपना नेता एक प्रधानमंत्री के रूप में चुनती है। भारत में पूर्ण स्वराज के लिए हमारे देश के अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व, सब कुछ न्यौछावर करके, अपने यहाँ तक कि अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश को स्वतंत्र कराया, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको संघर्ष ना करना पड़े। कुछ पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। जूते फटे पहन के आकाश पर चढ़े थे, जूते फटे पहनकर आकाश पर चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। सिर काटने से पहले दुश्मन ने सिर झुकाया, जब देखा हम मैदान पर निहत्थे खड़े थे, जब देखा हम मैदान पर निहत्थे खड़े थे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को
विराम देना चाहूंगा और प्राचार्य महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस अवसर पर यह दायित्व सौंपा है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी, बहुत से अच्छे संस्मरण स्मरण को आपने याद दिलाया, धन्यवाद के पात्र हैं सर, बहुत अच्छी भाषण था आपका। चलिए इसी क्रम में अब हम सूर्य नमस्कार के लिए अपने पीटी सर कुजूर सर को आमंत्रित करती हूँ, वे सूर्य नमस्कार के लिए कुछ प्रेषित करें। कुजूर सर। भवतु सुप्रीतः पद्महस्तो दिवाकरः। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलंबितां भुजङ्गमङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ज्वलल्ललाट पट्टपावते किशोर चन्द्रशेखरे रचि प्रशिक्षणम्। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिन्धुर स्फुरत् वधुत्तरीय हेतुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्त भूत भर्तरि। ॐ नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम्। ॐ नमः शिवाय। सहस्रलोचनं प्रकृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराग्रिपीठ। Wonderful presentation by the students as well as the teachers.
And what a very good composition by Sri K. Kujur, our PTI sir. As we know that health is wealth. It is rightly said, yes, health is wealth. Unless we have a good health, we cannot enjoy the wealth. However, we have earned the wealth in our lives. But then, if we are not able to enjoy the good health, we cannot really enjoy the wealth. For what we have been working day and night. So, for this, I would like to say a quotation. मन को आत्मा से मिला दे ऐसा है योग. मन को आत्मा से मिला दे ऐसा है योग. सारे झंझट से मुक्ति दिला दे ऐसा है योग. सारे झंझट से मुक्ति दिला दे ऐसा है योग. और सारे मुसीबत में पार लगा दे ऐसा है योग. सारे मुसीबत से पार लगा दे ऐसा है योग. Moving towards the next program, and the next program is the art and craft, which is going to be displayed by Sri Avdesh Kumar. Avdesh Kumar.
बहुत अच्छे अवधेश सर, बहुत ही सराहनीय पेंटिंग और ड्राइंग आपके सौजन्य से बच्चों ने आपकी मदद से बहुत ही सुंदर कलाकृतियां बनाई, जिसे देख करके हम सभी गदगद भाव विभोर हो गए। अवधेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस कार्य के लिए। और इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम अपने कार्यक्रम का कुछ पल और बचा है एक साथ बिताने के लिए। मैं प्राचार्य महोदय जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने इस अवसर पर मुझे यह दायित्व सौंपा। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। अब मैं केंद्रीय विद्यालय अंबिकापुर के प्राचार्य श्री नीलेंद्र कुमार सिन्हा सर को, जिनके सानिध्य में केंद्रीय विद्यालय अंबिकापुर उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, देश के 73वें गणतंत्र दिवस पर प्रेरणा स्वरूप अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करती हूँ परम आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री नीलेंद्र कुमार सिन्हा सर को। सर, आप आमंत्रित हैं। Thank you, ma'am. Very धन्यवाद सर। good morning, and at the very outset, I would like to felicitate my congratulations to all the country people, to all the parents, all the teachers, all the students on this great occasion of Republic Day. In fact, it's a dual occasion because along with this Republic Day celebration, we have also been witnessing Azadi Ka Amrit Mahotsav program. So lots of activities related to patriotic things, related to rather I would say connected to the body and soul of our country are going on. Recently, we also observed Netaji Subhash Chandra Bose Jayanti on 23rd of this month, 23rd January. And there also actually it was a part of his Scout and Guide program. And since I belong to one of the active member in Scouting and Guiding, in that connection, I joined that program and I simply narrated everyone what lesson can we learn from Subhash Chandra Bose. Not only Subhash Chandra Bose, but there are many stalwarts who brought us this independence. I'll request Sirius Topoji, please unmute. Please mute. Sirius Topoji, please mute. Thank you. Subhash Chandra Bose ji, Mahatma Gandhi ji, Pandit Nehru, and many more. They are well known to each and every citizen of the country, but still there are a large number of heroes whose stories are unsung. So by virtue of good deeds of our students, teachers and parents, we could bring some of such unsung heroes into the limelight. And such stories were shared with our national headquarters, and that story was put on KVS website also. Few of the stories of this kind were also selected by
Ministry of Education, Government of India. And through their portal, they are also displaying similar things. Bringing independence or making of constitution, it is not the work of a handful of people. It it was the it was of course the work of millions of people, but few were acting the acting as leader and others were assisting. But at the same time, everybody contributed. On this occasion, I'm not going to repeat the same thing because few of our students and Janki ji, they have already covered this part. What is the significance of this day? But I would like to do something which you may call out of the box. Every moment when we live in this independent country, we have to contribute towards it. We can be happy living inside an independent country, but it is equally difficult to uphold its independence and sovereignty. As of now, more than 100 countries in the world, they are having this dominion or republic status. But India, our country, is a pioneering country, is a leading country to teach the world what is the actual meaning of republic. And this is not a new thing. Before this Republic Day, that means year 1950, it was in vogue in ancient time also. 6th century before Christ, it was there. When you make a thorough study of our history, you'll come to know this kind of republic provision was already there in our country, but it was not spread far and wide. It was confined to a particular place, and it was, I'd like to narrate that name. It was Vaishali, now in present Bihar. So from there it originated, and now it is implemented in our country. This is the time we may offer our commitment for our country, for our society, and for our country people. Or merely enjoying will bring nothing. We'll have to give our contribution. We have to develop this notion. So long as we are alive, we'll keep doing, we'll keep changing the world. With this notion, we have to survive. The day we stop working, it is akin to as if we are dead. So working towards betterment of our country, of ourselves, our society, to everyone is a sign of our living. Dear friends, every day we sing the national anthem when we come to school. And I remember my my school days when I was a student in a primary school. That time, one of my teacher, he told me the meaning of national anthem. And from that time, it was well got inside my mind what is the meaning of this national anthem. We sing it with the
full devotion, with due respect, but at the same time, we must know its meaning. I'd like to tell its meaning in Hindi. जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है, उसके जो भावार्थ हैं वो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं वे इसे ग्रहण करेंगे। यहाँ पर इस राष्ट्रगान में जो सबसे बड़ी महत्ता स्थापित की गई है वह यहाँ के नागरिकों की है, जन की है। तो यहाँ पर आप जो संबोधन मैं करूंगा, आपका मतलब है यहाँ की जनता से। आप यानी जनता सभी लोगों के मन के शासक हैं। आप भारत के भाग्य विधाता हैं। यह नाम, यह भारत जो नाम है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, इन सभी के दिलों पर राज करता है। द्रविड़, उड़ीसा, बंगाल, विंध्य और हिमाचल की पहाड़ियों में यह नाम गूंजता है। यमुना और गंगा के संगीत से मेल खाता है और भारतीय सागर की लहरों द्वारा जपा जाता है। वे आपके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रशंसा गाते हैं। सभी लोगों का उद्धार आपके हाथ में है। आप भारत के भाग्य विधाता हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपको विजय प्राप्त हो। तो यह भावार्थ है हमारे राष्ट्रगान का। और यहाँ पे शिक्षक साथी भी हमारे जुड़े हुए हैं। तो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टाफ मेंबर, बच्चों को ये चीजें बताएं। गाना और याद कर लेना एक चीज है, लेकिन जब उसका भावार्थ समझेंगे तो ये हमारी कॉन्सेंस में यानी हमारी अंतरात्मा में यह समा जाती है। तो इसका ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और क्योंकि अभी कोविड प्रोटोकॉल है, इस कारण हम बच्चों को नहीं बुला पाए, यहाँ अभिभावकों को भी नहीं बुला पाए। और मोस्टली हमने रिकॉर्डेड आइटम प्रोड्यूस किया है और इसमें कुछ गलतियां भी हुई हैं। जैसे पता नहीं किसी ने ध्यान दिया या नहीं, मेरी नज़र चली गई वहाँ पे। एक बच्चे ने ड्राइंग बनाया था, लेकिन जो हमारा राष्ट्र ध्वज है थोड़ा सा उसमें कुछ इशू था, तो मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा। लेकिन प्रेजेंटेशन से पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और ए मेरे वतन के लोगों आराध्या गा रही थी। ये बड़े बड़े जो आज के सिंगर हैं, अगर वो भी ये वाला सॉन्ग गाएं तो शायद उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो रियली आराध्या बेटा, आपने बहुत मुश्किल सॉन्ग चुना था और मुझे लगता है कि आपने अपनी पूरी कोशिश की है इस गाने को निभाने की, गाने की। लेकिन म्यूजिक टीचर भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो इस डायरेक्शन में थोड़ा वो बच्चों पे ध्यान दें और नेक्स्ट टाइम आराध्या को फिर से प्रेजेंट करें इसी सॉन्ग के साथ। अगला 15 अगस्त आएगा और इसी सॉन्ग के साथ, और वहाँ पर इनका परफॉर्मेंस और भी अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रयास रहा सभी बच्चों का, उनके अभिभावकों का, सभी टीचर्स का जो इस मंच के माध्यम से यहाँ पर जुड़े। और तमाम रेस्ट्रिक्शन जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत हैं, इसके बावजूद हमने निर्धारित तरीके से इस हमारे राष्ट्रीय पर्व को यहाँ पे संपन्न किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। 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 Thank you, sir, for your words of appreciation, inspiration, and encouragement.
as you have highlighted the many points which we actually, the citizens of India, sometimes we do not able to understand. But sir, as you have highlighted some of the points, the real meaning of Jan Gan Man Adhinayak, really it was inspiring, sir. And definitely, whenever we sing this Rashtragan, we will really feel the meaning of it. Once again, I thank you so much, sir, for your valuable words. As we know that celebration is the time, and whenever we are celebrating or participating some of the programs, it looks like or it feels as if the time has just passed away. Within a few minutes, means just before few minutes ago the program started and it got concluded. But yes, we have to go according to the time, and we have come to the conclusion of the program, to the end of the program. And once again, I thank you each and everyone for participating virtually in this Republic Day celebration. Thank you, teachers, the students, those who are virtually watching this program. Thank you once again, each and everyone. Thank you. मैं 12 साल तक ट्यूशन पढ़ाई, 4 साल